I am Fawzia Tabassum, Department of Commerce, SS Memorial College, Ranchi University, Ranchi. In today's session, I will be discussing about human resource management. Human resource management is an important paper in MCOM BCom semester 3. In this lecture, I will discuss about the meaning of human resource management, the features of human resource management, and how does it differ from personnel management. So first of all, let's understand the meaning of human resource management, what actually human resource management is. So as the name indicates, management, we all know what is management. Management is related to the skillful utilization of resources to achieve the organizational objectives. And it is the process of planning, decision making, organizing, leading, motivating and controlling the available resources of an organization to reach its goals in an effective and efficient manner. So this management, when this management is done for human resource, what is actually human resource? Human means people, and resource, we all know resource means something useful or something is available to be used. So the human resource management is the management of people in an organization. When the human is called resource, when people have abilities, whether it is mental ability, physical ability, and some skills, attitudes to perform certain task, to perform certain job, then the people are called human resource. Without skills and knowledge, human is not considered as a resource. So when we talk about human resource management, it is concerned with the human beings in an organization, the management of man. And it is a very challenging job. Why? Because the dynamic nature of the people. No two people are similar. Their mental abilities, tacticians, sentiments, behaviors, everything is different. And people are responsive. They feel, they think, they act, they react. So it is not an easy task to manage people. It is a very challenging task. There are various when some employee joins an organization, he has his own certain objectives जिसको कि अचीव करने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है. एंड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रन, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो ह्यूमन अप्रोच के थ्रू इंसानों को मैनेज किया जाता है. ह्यूमन अप्रोच के थ्रू कहने का मतलब है कि जो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है एम्प्लॉयज़ का और ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना पड़ता है, उन दोनों को साथ में लेते हुए चलना पड़ता है. और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस concept or is approach ke through organization can utilize the manpower not only for the benefits of the organization but also for the growth and development and satisfaction, most importantly satisfaction of the concerned people. So ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे भी, और उनका जो पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स का पर्सनल नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है, उनको इन्हांस करते हुए उनको 100% यूज़ करना है, उनको 100% यूटिलाइज़ करना है. किस लिए? कि पर्सनल जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो भी फुलफ़िल हो और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी साथ में फुलफ़िल हो. तो जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि जो मैन पावर है उनको हमें मैनेज करना है, तो उनके अंदर मैन पावर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे, उन सारे फैक्टर्स को मैनेज करना उसके अंदर आता है. तो ये जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, क्या होता है कि उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, एक्सेट्रा. देयर आर वेरियस मैनेजेरियल फंक्शंस. तो ये जो सारे मैनेजेरियल फंक्शंस हैं वो किसके लिए किए जाएंगे? जब रिलेटेड होंगे ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड होंगे. तो उनको मैनेज करने के लिए किन किन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होगा? तो एक एम्प्लॉई जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और उस टाइम से लेके जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, रिटायर होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है या वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ता है, तो उन सब के बीच में जितनी भी जो भी प्रोसेस आएगा या फिर जो भी
जो भी एक्टिविटीज़ आएंगे, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा। तो जनरली क्या क्या एक्टिविटीज़ या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि हो सकती हैं कि कोई एम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसके बाद से क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई आप जब सर्टेन टास्क कराना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का है, या फिर प्रोक्योरमेंट भी आप उसको बोल सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया। उसके बाद जब आप लाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो स्किल्स वगैरह है उनकी इन्हांस की जाएंगी। तो सेकंड पार्ट होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद एम्प्लॉय सर्विसेज, आपने लाया किस लिए, कि उनसे आपको सर्विसेज अवेल करनी है। तो एम्प्लॉय सर्विस का पार्ट आया। और एम्प्लॉयज़ जब अपनी सर्विसेज देंगे तो उसके बदले में आपको उनको सैलरीज देनी है। तो ये कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है। जो सैलरी एंड रेमुनरेशन जो दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो कॉम्पनसेशन के हेड के अंदर आता है। उसके बाद जब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय नहीं है, देर आर वेरियस एम्प्लॉयज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो वर्किंग कंडीशन, सैलरी वगैरह, मोटिवेशन वगैरह तो है ही, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में वो डिस्क्राइब कर, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी उसको इस तरह समझिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में होता है कि एम्प्लॉयज़ का आपस में कैसा रिलेशन है, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉयज़ टू मैनेजमेंट किस तरह का रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट सप्रेस करता है एम्प्लॉयज़ को, या फिर उनको उनके साथ पार्टिसिपेटिव नेचर का है, उनको अपनी राय फ्रीली रखने की छूट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आती हैं। उसके बाद क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी, जब भी काम कराया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा पूरा जो भी मेजर्स है उनको फॉलो करना होगा। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का आ गया। उसके अलावा वर्किंग कंडीशंस, कि किस तरह के कंडीशन में आप काम कराते हैं एम्प्लॉयज़ को। देर आर वेरियस एक्ट्स जो कि फिक्स करते हैं कि क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, कि कोई भी एम्प्लॉय जब काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वर्किंग कंडीशन है। उसके बाद जब काम किया जा रहा है, जो वो सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो उन सर्विसेज का जो उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस का क्या किया जाएगा, अप्रेजल होगा, असेसमेंट होगा उनके वर्क का। तो अप्रेजल एंड असेसमेंट, ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट से लेकर के फाइनली उनके असेसमेंट तक, उनके अप्रेजल तक, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इन सब को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड उनको कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ को, ये प्रोसेस जो है, कंप्लीट प्रोसेस, ये कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एक टर्म आता है कि पर्सनल मैनेजमेंट, या PERSONNEL, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ये भी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना ही है। एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने को ही पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन इसका एडवांस वर्जन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को बस वो एक रिसोर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, वो उनको एक टूल की तरह यूज़ करते हुए उनसे से ज़्यादा काम किस तरह से लिया जाए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, ये जो प्रोसेस होता है वो पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन अप्रोच है, कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन असेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है एम्प्लॉयज़ को। उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस ना करते हुए दोनों को साथ में लेकर चला जाता है, कि एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉयज़ का पर्सनल जो भी ऑब्जेक्टिव्स है प्लस ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है, और वो क्या काम करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो भी स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज़ है उनकी, उनको किस तरह से पॉलिश करते हुए, इन्हांस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके दौरान इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहें, प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विलिंगली, जब वो मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑफकोर्स वो विलिंगली अपना जो भी जॉब है उसको परफॉर्म करेंगे, विलिंगली अपना 100% देना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो यही एक डिफरेंस होता है बेसिक पर्सनल मैनेजमेंट में
और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट का ही एक एडवांस्ड वर्जन है जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट को भी लेके चलता है। तो अगर ये कहा जाएगा कि what is the difference between personal management and human resource management, तो there is basic difference। मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ पॉइंट वाइज, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू विश। फर्स्ट है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू पीपल एम्प्लॉयड, जो भी पीपल एम्प्लॉयड है उनसे रिलेटेड है पर्सनल मैनेजमेंट। बस वो एज एन एम्प्लॉय उसको देख रहा है और उससे उसको अपना 100% ले रहा है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। वो क्या है कि नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं पे फोकस करके, उन्हीं को इन्हांस करके और उसका 100% लेने की कोशिश करता है, और उसी के थ्रू जब किसी एम्प्लॉय का नॉलेज एंड स्किल्स इन्हांस और बढ़ रहा है तो वो उसके भी पर्सनल डेवलपमेंट में फ़ायदेमंद है। Second point is employees are treated as economic man as they are paid salaries in personal management। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो इकोनॉमिक मैन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि उनको सैलरी दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम हो सकता है। मतलब जब कुछ हम ख़रीदने भी जाते हैं तो ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें से मुझे बेस्ट मिल जाए। तो उसी तरह से एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको देखा जाता है कि इकोनॉमिक मैन की तरह, कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से हम ले सकते हैं, तो उसी तरह उनको यूज़ किया जाता है। इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे आर ट्रीटेड एज सोशल साइकोलॉजिकल पर्सन। क्यों इस तरह से ट्रीट किया जाता है? क्योंकि ये पता है, मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो एक्टिव रिसोर्स है। दे कैन फील, दे कैन रिस्पॉन्ड, दे कैन रिएक्ट। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी डिसीजन का, किसी भी टास्क का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या फिर उनके परफॉर्मेंस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर ट्रीटेड एज सोशल साइकोलॉजिकल पर्सन। थर्ड पॉइंट इज देर इज़ एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किन के बीच में? एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली मैनेजमेंट तक अपनी बात नहीं रख पाते। उनके बीच में क्या होता है कि एक जैसे यूनियन, आपने पढ़ा होगा कि यूनियन होता है, कि यूनियन में कोई लीडर है, उनके थ्रू वो अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। बट in human resource management there is a direct communication among employees and management। उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल मैनेजमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ स्लो। यहाँ पे डिसीजन का जो स्पीड है वो स्लो रहता है। ऑब्वियसली स्लो ही होगा क्योंकि जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ फास्ट। नेक्स्ट, इन पर्सनल मैनेजमेंट लेबर मैनेजमेंट इज़ थ्रू कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं के थ्रू लेबर को मैनेज किया जाता है। लेकिन उसी के ऑपोजिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इट इज़ थ्रू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग ह्यूमन बीइंग है वो अलग है नेचर में, उनकी एबिलिटीज़ अलग है, तो वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक की साइकोलॉजी, हर एक की नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ अलग अलग है। तो इनमें जो है लेबर मैनेजमेंट किया जाता है वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू किया जाता है। In personal management, next point is in personal management, method of job design is division of labor। जो जॉब डिज़ाइन है वो किस तरह से किया जाता है? डिविजन ऑफ लेबर। लेकिन उसी के ऑपोजिट, या फिर कह सकते हैं उससे अलग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इट इज़ थ्रू टीम बिल्डिंग। उसमें टीम बनाया जाता है कि जिसकी जो भी एबिलिटीज़ है वो उस तरह से अपना परफॉर्मेंस देगा और एक टीम की तरह एज अ टीम काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को रीच किया जाएगा, उनको अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पे इज़ रिलेटेड टू जॉब इवेल्युएशन इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में पे जो है वो किससे होगा? जॉब इवेल्युएशन के बेसिस पे होगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्योंकि आप उनके नॉलेज स्किल पे काम कर रहे हैं, उनको पर्सनली आप मोटिवेट कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू काम हो रहा है, तो जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ का वो लास्ट में देखा जाएगा, क्योंकि अप्रेजल होगा, असेसमेंट होगा आपके काम का, तो इट इज़ एज पर परफॉर्मेंस रिलेटेड। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इन पर्सनल मैनेजमेंट लेबर इज़ ट्रीटेड एज अ टूल। लेबर जो है उनको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। बट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेबर इज़ ट्रीटेड एज एन असेट। उनको
एक असेट की तरह यूज़ किया जाता है कि उनको प्रिजर्व करके रखना है। और जो भी है एम्प्लॉयज़ हमारे इसमें, जो भी एम्प्लॉयज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका, वो एक समान वो बना रहे एंड तक। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नाउ लेट्स कम टू सम डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्लिप्पो, फ्लिप्पो जो है वो डिफाइन करते हैं किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resources to the end that individual, organizational, and social objectives are accomplished. फिलिप्पो ने किस तरह डिफाइन किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये तो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन से, जो कि सब जानते हैं। किसी भी तरह का मैनेजमेंट आप रहे, वेदर इट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजमेंट हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट यही चीज़ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि प्रोक्योरमेंट, ये जो है एक्टिविटी सारी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो किससे? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोक्योर करने से लेकर सेपरेशन तक सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। और किस तरह से? टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकॉम्प्लिश्ड, कि इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्वियसली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव और विदाउट एनी गोल ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करते, उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अलग है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अकॉम्प्लिश करना है, एंड उनके साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकॉम्प्लिश्ड। तो इस तरह से मैनेज करना है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो अचीव हो जाए, वो अकॉम्प्लिश हो जाए। नाउ रॉबिन्स, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द पीपल डायमेंशन इन द मैनेजमेंट। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंसर्न्ड है किससे? पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पीपल डायमेंशन से। सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ पीपल, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीपल से ही बना हुआ है। So acquiring their services, developing their skills, motivating them to higher levels of performance, and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential to achieving organizational objectives. This is true regardless of the type of organization, government, business, education, health, recreation और social action, कि जिस किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे मतलब नहीं है, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन और सोशल एक्शन, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मेंटेन करना वो ज़रूरी है। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और उनकी जो भी स्किल्स है एम्प्लॉयज़ की, कि जो भी उनका सर्विस को एक्वायर करना, उनके स्किल्स को इन्हांस करना, डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी तरह से दे सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं सबको सबका मैनेजमेंट करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहला। So at the end we can say human resource management is a continuous process of ensuring that availability of eligible and willing workforce, putting the right man at the right job. So क्या है कि जो सही इंसान, उनको सही जॉब पे लगाना, उनको राइट पर्सन को राइट जॉब पे उनको लगाना। तो किस तरह से ये हो सकता है? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो रिलेटेड है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ से। तो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्यों उनको इन्हांस किया जा रहा है? क्योंकि जो भी जॉब है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है ये पता है ऑर्गेनाइजेशन को, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कौन सही इंसान है, सही इंसान को सही काम पे लगाना, इस तरह से मैनेज करना होगा। तो ये मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा। सो आई होप I have cleared the concept of human resource management and the difference between personal management and human resource management. So in my next lecture, I will discuss about the features and functions of human resource management. Thank you.